Now, today we will discuss Bohr's model of an atom, and this is the important topic for the exams. So, protons, neutrons, and electrons are not evenly distributed in an atom. And how they distribute? This is the atom. This is a atom. Protons and neutrons exist in a dense core at the center of the atom called nucleus. So, this is the nucleus of an atom. This is the nucleus of an atom in which protons and neutrons present. So, protons and neutrons are present in the central core of the atom called nucleus. And electrons are spread out around the edge of the atom. They orbit the nucleus in layers called shells. Protons and neutrons are present inside the nucleus, and electrons, these are revolving around the nucleus. So in an atom, electrons are revolving around the nucleus, and protons and neutrons are present inside the nucleus. Electrons revolving around the nucleus. These are electrons, these are electrons, these are electrons, and they are revolving around the nucleus in shells. These circular orbits are called shells. So protons and neutrons are present inside the nucleus of an atom, and electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. These circular orbits called shells. So now, postulates of Bohr's model. This model was based on the quantum theory of radiation. So Bohr's model of the atom based on the quantum theory of radiation, जो हम पढ़ चुके हैं. And also Bohr explained the stability of the atom. Bohr explained the stability of the atom and also emission of sharp spectral lines. So Bohr ने क्या क्या explain किया था कि जो हमारा एटम है वो क्या स्टेबल है, एंड और उसने क्या डिस्कस किया था, emission of sharp spectral lines. ये हम अभी स्टडी करते हैं. What is the meaning of sharp spectral lines? So पहले बोर ने क्या एक्सप्लेन किया था, stability of the atom. So first postulate, an atom consists of dense positively charged nucleus situated at the center surrounded by electrons. So this is the atom and this is a nucleus, and nucleus contains protons and neutrons, and electrons are revolving around the nucleus. These electrons revolve around the nucleus in a definite circular paths called orbits. So these are circular paths around the nucleus, and these circular paths where electrons are revolved, these circular paths are called orbits, and they revolve without emitting any energy. Student, when the electrons are revolve around the nucleus, they does not emit any energy. ये student important point है. While revolving around the nucleus, electrons does not emit any energy. That is, as long as the electron is in a given orbit, its energy does not change. So मतलब क्या है, while revolving, electrons does not emit energy. इसका मतलब जब तक वो अपने ऑर्बिट में, गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है. एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड. So while revolving around the nucleus, the electrons does not emit any energy. Student, Rutherford ने कहा था कि while revolving electrons they emit energy, but Bohr explains that, क्या explain किया बोर ने, while revolving around the nucleus the electrons does not emit any energy and their energy remains fixed in a given orbit. So that's why these orbits
referred to as stationary orbits or stationary states or non-radiating orbits. So student, जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी एमिट नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए उन ऑर्बिट्स को हमने क्या बोल दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी मतलब एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड. सो यहां पे स्टेशनरी का क्या मतलब है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी. सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स or non-radiating orbits, because these electrons while revolving around the nucleus does not emit any energy, their energy remains fixed. So these orbits, जो ये shells हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन shells हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, इन shells को, इन ऑर्बिट्स को जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या बोल दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स. सो दी सर्कुलर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स्ड एनर्जी. इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी एनर्जी, देयर एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड. So in a given orbit, the energy of electrons is fixed, and these orbits, these energy levels, these energy shells are called stationary states, stationary orbits or non-radiating orbits. ठीक है स्टूडेंट. The electrons revolve only, second postulate, the electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy. So student, electrons उसी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां पे उनकी एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, फिक्स्ड. सो व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स देयर एनर्जी हैव फिक्स्ड वैल्यू. सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स. सो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. मीन्स द एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन in a given orbit remains fixed. Hence these orbits are called energy levels or stationary states. इनको हमने क्या बोल दिया, energy level, stationary states, stationary orbits और non radiating orbits. ठीक है स्टूडेंट. सो यहां तक हमने अभी क्या पढ़ा स्टूडेंट, दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and electrons are revolve around the nucleus in circular paths, and these electrons does not emit any energy. So that's why these circular orbits are called stationary orbits, stationary states or non-radiating orbits. Energy levels, these are called energy levels, and their energy remains fixed. Okay student, ये आपके दो पोस्टुलेट्स हो गए. ठीक है स्टूडेंट. अब नेक्स्ट, दीज एनर्जी लेवल्स. सो स्टूडेंट, ये वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर. किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3. उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वांटम नंबर. क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर. दीज एनर्जी levels around the nucleus are called quantum numbers in which electrons are revolve. So these energy levels are represented by an integer n is equal to 1 2 3 4 etc. are known as, क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको, क्वांटम नंबर. क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल वर्ड भी यूज कर लो स्टूडेंट यहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. So this is called principal quantum number, and this range of quantum number starts from the nucleus. कहां से स्टार्ट करनी है स्टूडेंट, न्यूक्लियस से. This one is nucleus where protons and neutrons are reside. प्रोटॉन को, न्यूक्लियस को स्टूडेंट हम प्लस के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है आपके, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स इनका चार्ज क्या है, जीरो,
and protons are positively charged. Protons are positively charged. और protons plus neutrons, स्टूडेंट कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव प्लस 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव. सो न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? प्लस के साथ. पता चल गया स्टूडेंट क्यों प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपकी प्लस साइन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के कारण, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, बिकॉज in the nucleus only protons and neutrons are reside. So these are energy levels. ये आपके क्या स्टूडेंट? एनर्जी लेवल्स. और हमने जो एनर्जी लेवल्स काउंट करने शुरू करने हैं स्टूडेंट, वो कहां से काउंट करने शुरू करने हैं? न्यूक्लियस से. सो ये न्यूक्लियस के पास सबसे फर्स्ट ऑर्बिट, वो क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्बिट. ये वाला क्या आ गया स्टूडेंट? सेकेंड ऑर्बिट. ये वाला क्या आ गया? थर्ड ऑर्बिट. ये वाला आपका फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन. So these orbits start from the nucleus side with n is equal to 1 having the lowest energy level. So this is the first energy level. This is the first energy level. This is the second energy level. So first energy level is the lowest energy level. तो उसका एनर्जी लेवल होगा स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी इस फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, उसकी एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट. सो दिस क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. कहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट शुरू करनी है स्टूडेंट? न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसको फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर आपका फोर्थ ऑर्बिट. एंड फर्स्ट ऑर्बिट हैव लोएस्ट एनर्जी लेवल. ठीक है स्टूडेंट? सो दीज ऑर्बिट्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा आर असाइंड एज कौन से लेवल्स? के. जो फर्स्ट लेवल है उसको क्या असाइन किया हुआ है? के. सेकेंड लेवल को क्या असाइन किया हुआ है? एल. थर्ड को एम, फोर्थ को एन एंड सो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल. क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? क्या असाइन किया हुआ है? के शेल. सेकेंड एनर्जी लेवल को एल, थर्ड एनर्जी लेवल को एम शेल, फोर्थ एनर्जी लेवल को एन शेल एंड सो ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम द शेल्स क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से हमने ये काउंटिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है स्टूडेंट? फर्स्ट एनर्जी लेवल को असाइन क्या किया है? के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन एंड सो ऑन, एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. ठीक है स्टूडेंट? आपके 3 पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए स्टूडेंट? नाउ फोर्थ पोस्टुलेट, द फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. ये स्टूडेंट आपका न्यूक्लियस आ गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्बिट. द फर्स्ट एनर्जी लेवल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी. ये मैं आपको बता चुका हूं. जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है स्टूडेंट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, इस सर्कुलर ऑर्बिट की, इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है स्टूडेंट वो क्या है? लोएस्ट. वो क्या है? लोएस्ट. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी ये शेल्स न्यूक्लियस से दूर जाती जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते जाएंगे, तो इनका एनर्जी लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा. सो एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, हैव लोएस्ट एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ लेवल्स इंक्रीजेज एज वी मूव आउटवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट शेल. जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, और के टू एल, एल टू एम, एम टू एन, एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा स्टूडेंट? बढ़ता जाएगा. सो के का एनर्जी लेवल सबसे कम, फिर एल का, फिर एम का, फिर एन का एंड ओ का एंड सो ऑन. सो एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस कौन सा है? फर्स्ट एनर्जी लेवल विच हैव लोएस्ट एनर्जी, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर move outward from the nucleus, the energy of levels increases. Means second energy level is more than first energy level, third energy level is more than second, fourth energy level is more than third, and so on. So as electrons, as shells move away from the nucleus, the energy of the electrons increases.
द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बिकॉज इन दी शेल्स, इन शेल्स में क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स. सो एज द इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ दीज शेल्स increases. So first energy shell has lowest energy, second energy shell has more energy than first, third energy shell has more energy than second energy level, fourth energy shell has more energy than third energy shell. So energy increases, K to L, L to M, M to N, N to O and so on. So energy increases as electrons move away from the nucleus. ठीक है स्टूडेंट, 4 पोस्टुलेट्स. नाउ नेक्स्ट आ गया बोर्स मॉडल का इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन मीन्स दैट ए क्वांटिटी कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू बट चेंजेस ओनली एब्रप्टली एंड डिसकॉन्टिन्यूसली टू हैव सर्टेन डेफिनाइट और डिस्क्रीट वैल्यू. सो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी है वो ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूस फैशन में, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रही है. कैसे चेंज होगी? डिसकॉन्टिन्यूसली. कैसे चेंज होगी? डिसकॉन्टिन्यूसली. बट चेंजेस ओनली अब्रप्टली. और कैसे चेंज होगी? अब्रप्टली मतलब इन बिग अमाउंट्स में. जो एनर्जी चेंज आएगा E1 टू E2, E2 टू E3, these आर द एनर्जी लेवल्स. इनमें जो चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा? अब्रप्ट चेंज होगा. और वो कैसे होगा? डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में. कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होगा, अब्रप्टली एंड डिसकॉन्टिन्यूसली टू हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू. ठीक है, उनकी कोई अपनी फिक्स्ड वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू में वो चेंज होंगे रादर देन कॉन्टिन्यूस वैल्यू में. ठीक है स्टूडेंट, उसका क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है स्टूडेंट वो क्या है? क्वांटाइज्ड. वो क्या है? क्वांटाइज्ड मींस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स. स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं? विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. जिनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? उनमें फिक्स्ड होगी. सो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पे उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी. मतलब व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या है स्टूडेंट? फिक्स्ड. वो क्या है? फिक्स्ड. हेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have only certain definite or discrete values of energy called quantas or photons and not any value of their own. मतलब उनकी जो एनर्जी वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में, कोई से भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है? वो फिक्स्ड है. अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई एनर्जी वैल्यू है तो वो फिक्स्ड है, सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी वैल्यू है वो फिक्स्ड है चेंज. यहां पे फॉर एग्जांपल एनर्जी आपकी आ गई E1, यहां पे आ गई एनर्जी E2, फॉर एग्जांपल थर्ड शेल में आ गई E3. तो मैग्नीट्यूड इनका क्या स्टूडेंट? डिफरेंट. लेकिन जो ये E1 है वो चेंज नहीं होगा वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वो चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर शेल चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी चेंज हो जाएगा. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी. E1 energy of first energy level is less than E2 then E3 second energy level क्या होगा? उसका ज्यादा होगा. थर्ड एनर्जी लेवल ज्यादा होगा. और ये एनर्जी क्या स्टूडेंट? फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की E1 है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? E1 ही होगी. अगर किसी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल E1. फॉर एग्जांपल सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो उन चारों इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी वैल्यू होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी E2 फॉर एग्जांपल. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर शेल में
उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी। और उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, क्वांटाज और फोटॉन्स। क्या नाम दे दिया, क्वांटाज और फोटॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, वो अपनी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे अपने आप। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होगी एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन्स की, फिक्स्ड होगी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इसका क्या मतलब निकला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 6 हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो इसका क्या मतलब निकला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी जो एनर्जी है वो क्या स्टूडेंट, फिक्स्ड। मतलब उसको क्या बोल दिया हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मतलब उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, कोई अपने आप वैल्यू वो चेंज नहीं करेंगे। इट मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस व्हाइल रिवॉल्विंग इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इन देयर लोएस्ट एनर्जी स्टेट, they keep on revolving in the respective orbits without losing energy, because energy can neither be lost nor gained continuously. This state of atom is called normal or ground state. ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाली जो न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल है, दिस इज द फॉर एग्जांपल लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब ये जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, when the electrons in an atom are in their lowest energy state, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी के साथ, E1 एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब वो अपनी एनर्जी ना लॉस करेंगे ना गेन करेंगे। सो इस स्टेट ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ना एनर्जी गेन करेंगे ना एनर्जी लॉस करेंगे। उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 है तो ये फिक्स्ड है। जब उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उस स्टेट को स्टूडेंट क्या बोल दिया हमने, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। क्या बोल दिया, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। So when the electrons in an atom are in their lowest energy state, for example first energy state, so while revolving around the nucleus, these electrons does not lose energy, ना वो लॉस कर रहे हैं ना वो गेन कर रहे हैं, ना वो अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं और ना वो लॉस कर सकते हैं। उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड उस स्टेट में एटम की उस स्टेट को क्या बोल दिया स्टूडेंट, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। सो जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, इट मींस अपने आप ना वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं ना वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो इस फिक्स्ड कंसेप्ट को, फिक्स एनर्जी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। एंड उस स्टेट ऑफ एटम को क्या बोलेंगे, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। अब इस स्टेट को क्या बोलेंगे, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। सो इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज कॉन्टिन्यूसली। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, न्यू कंसेप्ट ऑफ दिस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज एक्साइटेड स्टेट। तो ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।